Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, I hope that you are all fine with the grace of Almighty Allah. Today we are back with a new lecture, and the name of the topic is adjective class. As you know that we are dealing with subordinate class. Let me remind you that this subordinate class has three types: noun class, adjective class, and adverb class. Now the first two classes, that is noun class and adjective class, they are in your syllabus. So in this lecture we shall deal with adjective class. Okay, so let's begin. So when we talk about a noun class, as I told you that a noun class is a class that functions as a noun in a sentence, or a class that functions as the subject or object of a verb in a sentence that you know very well. Now what is an adjective class? So a class that functions as an adjective in a sentence is called an adjective class. So this adjective class functions as an adjective. Its function is to work as an adjective in a sentence. You got it? Now the question is, how can you recognize an adjective class? So it is so simple to recognize because it is introduced by a relative pronoun. An adjective is introduced. It starts with a relative pronoun such as who, which, that. Are you getting me? So an adjective class will be introduced by a relative pronoun such as who, which, or that. Clear? So before knowing adjective class properly, you must know what is an adjective. So you know it, that an adjective is a word which modifies a noun, or we can say a word that adds meaning to a noun. Are you getting me? Is known as adjective. For example, he is a smart boy. Are you getting me? He is a smart boy. So we are talking about someone. He is subject here. Are you getting me? And the word smart acts as an adjective because it modifies noun. वो लड़का कैसा है? वो smart है. Are you getting me? The word smart adds meaning to he. Are you getting me? So it is an adjective. Now same is the purpose of an adjective class, that we can simply say that an adjective class is a class. It is another definition of adjective class. Okay, an adjective class is a class that modifies a noun in a sentence. Are you getting me? So it is so simple. Now let us take a few examples of an adjective class. So for example, Pi tried to help Richard Parker, who was swimming in the sea. Now let's look toward this sentence very closely. Now we are talking about Pi. Are you getting me? So who is this Pi? So let me remind you that this is the exercise of lesson number 9, adjective at sea. Are you getting me? So if you remember, in the lesson we just read that it is a story of Pi and his family. His father is having a private zoo, and unfortunately they have to move to some other place, and they abort all the animals from the zoo
in a ship and that gets drawn. You know that. So what did Pi do? He tried to help Richard Parker, who was swimming in the sea. Now, as you know that, I already told you that there are, when you talk about clauses, we come to know that there are main two clauses. There are basic two clauses, okay? Main clause and subordinate clause. Now, which is the main clause? The main clause is here. Pi tried to help Richard Parker. Are you getting me? Now, let us first find if there is a relative pronoun. Yes, here is a relative pronoun who. Are you getting me? Who is a relative pronoun. तो बेटा relative pronoun के बाद जो सारे words आते हैं, इससे पहले नहीं, इसके बाद. It means who से लेकर C तक. Who was swimming in the sea. बेटा ये क्लास किसके बारे में है? पाई के बारे में है, रिचर्ड पार्कर के बारे में. रिचर्ड पार्कर के बारे में. तो इस क्लास ने रिचर्ड पार्कर को मॉडिफाई किया. ये रिचर्ड पार्कर क्या करता था? वो स्विम कर रहा था सी में. सो दिस class who was swimming in the sea, it modified our noun, that is Richard Parker. It provided us more information about Richard Parker. तो बेटा इस क्लास को हम कहते हैं, इस पूरी क्लास को हम कहते हैं कि ये इस सेंटेंस में पाई से लेकर सी तक, इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव क्लास है वो हु से लेकर सी तक है, बिकॉज इट मॉडिफाइड रिचर्ड पार्कर. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. Here is the book that you asked for. So we are talking about book. Are you getting me? So here is the book. Here is the book. It is main clause, and that. So that is relative pronoun. That is relative. So बेटा that से लेकर for तक, that you ask for, this clause modifies what? Book. कैसे? Here is the book. यहाँ वो book है, यहाँ वो किताब है जो आपने मांगी थी. ठीक है, और यहाँ वो किताब है जो आपने मांगी थी. अब अगर हम क्लोजली देखेंगे बेटा, यहाँ पे बात हो रही है बुक की. ठीक है, यहाँ पे वो किताब है. कौन सी किताब? जो आपने मांगी थी. दैट यू आस्क्ड फॉर. तो दैट यू आस्क्ड फॉर ये मॉडिफाई करता है. इट गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन. इट एड्स द मीनिंग ऑफ नाउन. सो इट मीन्स दैट दिस क्लास इज एडजेक्टिव क्लास. अनदर एग्जाम्पल. नाउ यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. अब गौर से सुनिए बेटा, ये सेंटेंस समझना बहुत जरूरी है. द डॉक्टर who treated me is a very kind man. Now we are talking about doctor. Are you getting me? So doctor is our subject. ये noun है यहाँ पे बेटा, हमारा subject है या noun है. ठीक है. Now हम इस डॉक्टर की बात कर रहे हैं. कौन सा डॉक्टर? अब यहाँ पे हमें देखना है रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है. तो who is relative pronoun. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या हु ट्रीटेड मी इज ए वेरी काइंड मैन. क्या हु से लेकर काइंड मैन तक ये सारा एडजेक्टिव क्लास है? नहीं बेटा, गलत. व्हाई? वो मैं आपको समझाऊंगा. ये सारा क्लास एडजेक्टिव क्लास क्यों नहीं है? तो सुनिए बेटा, द डॉक्टर सब्जेक्ट है, नाउन है. ठीक है, तो यहाँ पे फिर रिलेटिव क्लास आ गया हु. तो इस डॉक्टर ने क्या किया? हु ट्रीटेड मी. हु treated me. फिर यहां पे वर्ब आता है is a very kind man. is a very kind man. अब आपको समझना ऐसे है बेटा कि जो एक क्लास है ये हमेशा मॉडिफाई करता है. किसे मॉडिफाई करता है? एक नाउन को मॉडिफाई करता है. आर यू गेटिंग मी? तो यहां पे क्या होता है, इस सेंटेंस की तरफ हम देखते हैं. द डॉक्टर हु ट्रीटेड मी इज अ वेरी काइंड मैन. जो ये इज अ वेरी काइंड मैन है बेटा, ये एडजेक्टिव क्लास में नहीं आता है. क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहां पे जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन के साथ वर्ब लिया हु ट्रीटेड मी. ठीक है,
तो यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे फिर एक वर्ब आता है, इज आता है, ठीक है। तो ये दो वर्ब्स आप कैसे पहचानेंगे, अगर साइड बाय साइड दो वर्ब्स आएंगे, हु ट्रीटेड मी, वाज, आर यू गेटिंग मी, इज, कैन बी, कुड बी, आर यू गेटिंग, मे बी, माइट बी, चाहे मॉडल हो या कोई वर्ब हो साइड बाय साइड, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम सेंटेंस को स्प्लिट करते हैं, आर यू गेटिंग मी। तो ये सेंटेंस स्प्लिट होगा 3 पार्ट्स में। द डॉक्टर सब्जेक्ट है, हु ट्रीटेड मी एक क्लास है, इज ए वेरी काइंड मैन। एक्चुअली ये सेंटेंस ये है बेटा, द डॉक्टर, हम ऐसे भी कहते हैं, द डॉक्टर इज ए वेरी काइंड मैन, द डॉक्टर इज ए वेरी काइंड, यानी कि बेटा जो ये वाला पार्ट है, इज ए वेरी काइंड मैन, इसकी रिलेशन पहले वाले पार्ट से है, डॉक्टर से क्या, ठीक है बेटा। काइंड कौन है, डॉक्टर काइंड है। अगर हम इतना भी कहेंगे ना, द डॉक्टर इज ए वेरी काइंड मैन, वो डॉक्टर बहुत काइंड है। मगर इसके अब हम डॉक्टर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, कौन सा डॉक्टर काइंड है, हु ट्रीटेड मी। अब आपको समझ आया होगा, यानी हम उस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, वो डॉक्टर काइंड है जिसने मेरा इलाज किया, जिसने मुझे ट्रीट किया, आर यू गेटिंग मी। तो ये वाला बनता है, हु ट्रीटेड मी बनता है यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास, आर यू गेटिंग मी। तो जो हमने यहाँ पे स्प्लिट किया, इज से लेकर द डॉक्टर जो है, इसकी रिलेशन इसके साथ है, तो ये सेपरेट रहता है क्योंकि ये डॉक्टर को मॉडिफाई करता है, तो इसको हम कहेंगे दैट इट इज एन एडजेक्टिव क्लास। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल, all the good things that we enjoy are gifts of nature। तो आई होप ये सेंटेंस आपको अच्छे से आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, पहले देखना सेंटेंस है कि all the good things, सबसे पहले हमें ढूंढना है रिलेटिव प्रोनाउन। तो दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, आप देख सकते हैं। तो इस सेंटेंस को भी हम स्प्लिट ऐसे करेंगे, all the good things, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक पार्ट हो गया, अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद और एक पार्ट है, दैट वी एंजॉय, दैट वे। तो फिर से आ गया ना, इज, एम, आर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, या कि जब मेन वर्ब ना हो तो इस वक्त हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब का काम करते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी ये सेंटेंस स्प्लिट कैसे होगा। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल द गुड थिंग्स आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल, ऑल द गुड थिंग्स आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो इसकी रिलेशन इसके साथ है, ठीक है। मगर इन गुड थिंग्स के का जो गुड थिंग्स है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिनका हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, उनको हम मॉडिफाई करते हैं, वो सारी अच्छी चीजें दैट वी एंजॉय, जिनका हम मजा लेते हैं, ठीक है, वो चीजें क्या है, आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो हमने स्प्लिट कैसे किया, अब एक ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। ट्रिक ये है बेटा कि रिलेटिव प्रोनाउन के लेफ्ट साइड में एक पार्ट आता है सेंटेंस का, और जो ये हेल्पिंग वर्ब होता है या कोई दूसरा वर्ब होगा सेंटेंस में, ठीक है, तो वहां पे सेंटेंस स्प्लिट होता है, वहां पे दूसरा पार्ट बनता। तो जो बीच में सेंटेंस, बीच में क्लास रहता है, किसके साथ, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो बीच में क्लास रहता है, उसी क्लास को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लास, बिकॉज इट मॉडिफाइज एन नाउन और इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। नाउ देयर आर different examples on your textbook on page number 102. Now you need to pay attention to this to the different examples. So there are mainly 8 questions on adjective class. Now you will do one thing, you will just comprehend all 8 sentences by heart so that you may understand the topic clearly. Inshallah I will see you in the next lecture. Till then, take care and fi amanillah.